Here is the first question, equation of the straight line ax plus by plus c is equals to 0, where 3a plus 4b plus c is equals to 0. I want to get the line which is located at a maximum distance from 1 comma minus 2. Log 1 plus x whole divided by x when x is tending towards 0. This is equals to 1 plus y upon 2 minus y plus z upon 2 minus z is equals to what? Then the product of x1 to x4 will be equals to what? Now theta 2 minus theta 1, what does it suggest? तो अब मीन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो जो मीन जो होगा that will be also multiplied by 3, that will become 3x bar. तो k की वैल्यू -5 के अबाउट ही ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेंज होगा, डिफरेंशिएशन करके पता चला मुझे। तो आखिरी नंबर जो 2 से स्टार्ट हो रहा है वो ये है कि यहाँ पे 9 रख दो, यहाँ पे 8 रख दो, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6। यहाँ पे हमें दिया हुआ है k टाइम्स एक मैट्रिक्स is an orthogonal matrix. Then the value of k will be equals to what? Hello students, welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya Educational Institution, and my name is Akshay Arora. In this particular video session, we'll be starting with the mock test discussion, that is mock test for the JEE Mains test number 4. So up till now we have covered test number 3. So 3 tests already been uploaded on our YouTube channel Infinity Learn JEE. Now this is about the 4th test. I hope you are following this series of the Infinity Learn mock test for the JEE Mains, that is 4th test. Let us come to the very first question without wasting your time. Here is the first question, equation of the straight line ax plus by plus c is equals to 0, where 3a plus 4b plus c is equals to 0, which is at a maximum distance from 1 comma minus 2. So basically what will be the concept used in this particular question? This question is about the straight line chapter, and here we can observe that if I compare these two equations, I'll observe that x is equals to 3 and y is equals to 4. So this ax plus by plus c is equals to 0 passes through fixed point, and that fixed point is what? 3 comma 4. Alright, so passes through fixed point, that is 3 comma 4, which is at a maximum distance from the point 1 comma minus 2. So here we have 1 comma minus 2. Alright, so basically from 3 comma 4 there can be infinite lines that can be passed through the point 3 comma 4, and I want to get the line which is located at a maximum distance from 1 comma minus 2. So the line which will be located at a maximum distance from the point 1 comma 2, 1 comma minus 2 is that line which is perpendicular at this point, So this line is a required line, and they are asking us to get the equation of this required line. How will I be able to get? So let us assume this point to be P. Let us assume this point to be Q, and I want to get the first of all slope of PQ. So if I want to get the slope of PQ, it will be y2 minus y1, so it will be 4 minus of minus 2 over x2 minus x1, that is 3 minus 1. So this will be converted to 6 over 2, and 6 over 2 will be written as 3. So this is about the slope of PQ. Once I get the slope of PQ, then I will be easily able to get the slope of the line. Slope of the required line will be the negative reciprocal of it. So it will be minus 1 upon 3. Once I get the slope of this line minus 1 upon 3, then I can write the equation of the line. So equation of the required line will be, because the line is passing through the point 3 comma 4. So here we can write equation of required line will be y minus y1, and the point which is given to you is 3 comma 4. So that is why y minus 4 is equals to m times. Slope is negative 1 upon 3. So it will be negative 1 upon 3 x minus x1, and point is 3 comma 4. So it will be 3 over here. I am cross multiplying it. Here we have 3y, here we have 12, then we have minus x, then we have plus 3. Let us bring all the terms to one side. It will be 3y plus x, and then minus 15 is equals to 0. So 3y plus x minus 15 is equals to 0 is given to us in the option D. That is why option D will be the final answer in this particular question. I hope you understood the concept that has been used to do this, to attempt this question. We are moving ahead to the next question. There is a function given to us, log of 1 plus ax minus log of 1 minus bx whole divided by x is not defined at x is equals to 0. Then the value of which should be assigned to f at x is equals to 0, so that it becomes continuous. So here what we need to write, that the limiting value is equals to functional value. That means if I talk about limit of x tending towards 0, fx, and if I talk about f of 0, so they should be equal if f is continuous at x is equals to 0. So I'm writing here if f is continuous
at x is equals to 0, then the limit of x tending towards 0, fx will be equals to f of 0. Now basically what we need to do here, we have log, then we have 1 plus ax, and this is whole divided by x. I am dividing individually by x. Then we have 1 minus bx, and then it is divided by x. I hope this is also clear to you. Now here what we need to do, just I am cancelling it, this is x. Now what we need to do, I want to use this limit. What is the limit that we have learnt in the logarithm? Log 1 plus x whole divided by x when x is tending towards 0. This is equals to 1. So the quantity which is placed here should be placed in the denominator also. So I'll look into this limit formula, then I'll apply the same formula over here. Here we have ax, so that is why I divide by a and I multiplied by a. Here we have minus bx, so that is why I divide by minus b and I multiplied by minus b. Now here this gets converted to 1, so this will be a into 1, and here minus into minus will become plus b, and this also gets converted to 1. So this is converted to a plus b. So a plus b is given to us in the option B, that is why option B will be the final answer. I hope you understood the concept that has been used in this question. So that is why we are moving ahead to the next one. The solution of this equation, 2z is equals to mod z plus 2 iota, where z is a complex number, is what? So here what we need to do, we need to assume this complex number z as x plus iota y. Then it is twice of z, twice of x plus iota y. Then it is mod z, it will be square root of x square plus y square, and then we have 2 iota over here. Now basically what we need to do, we just need to compare the real part as well as the imaginary part for equating the two complex numbers. So here we have 2x, and here we have the real part as root over x square plus y square. Here we have the imaginary part as 2y, and here it is 2. So the value of y will be in this case equals to 1. Now if I substitute the value of y as 1 over here, then I'll be able to get the value of x. So here if I substitute y as 1, it will be x square plus 1, then it is 4x square. So 3x square will be equals to 1, x square will be equals to plus minus x will be equals to plus minus 1 upon root 3. Now we need to get the value of the complex number. There will be two solutions for this complex number. One is minus 1 upon root 3 plus iota, and the other one is 1 upon root 3 plus iota. If I look into the option, we will observe that this option B has the answer, correct answer, which we have obtained here. So that is why option B will be the final answer for this question. I hope you understood the question and the way to attempt it. That is why we are moving ahead to the next question. Here x is not equals to 2, y is not equal to 2, and z is not equal to 2. And there is a determinant given to us which is equals to 0. Then we need to find the value of 2 upon 2 minus x plus y upon 2 minus y plus z upon 2 minus z is equals to what? So basically how will I be able to solve this question? What we need to do here we need to apply the elementary transformation, that is rho 2 tends to rho 2 minus rho 1 and rho 3 tends to rho 3 minus rho 1. On applying this, what I'll observe, this rho 1 elements will remain same, 2yz. Here we can write x minus 2, then it will be 2 minus y, and then it is z minus z. Here in the third row it will be x minus 2, then it is y minus y, and it is 2 minus z. I hope this is clear to you. Now what we can do, we can take this 2x minus 2 common from the first column. We can take this y minus 2 common from the second column. Instead of taking y minus 2 common, we can also write it as 2 minus y over here. So I am taking 2 minus y common, and then I am taking 2 minus z common from the third column. So here what I'll observe, I'll be left with 2 upon x minus 2, then it is 1, then it is 1. Here I'll be left with y upon 2 minus y, then it is 1, then it is 0. And here I'll be left with z upon 2 minus z, here it is 0 and here it is 1. And this is equals to 0. Since we know that x is not equals to 2, y is not equals to 2 and z is not equals to 2. So therefore these all factors will not be 0. And if these all factors are non-zero, then this particular determinant will definitely give us a value 0. Now let us try to expand this determinant. If I try to expand this determinant, what I'll observe, 2 upon x minus 2 is taken, I'm expanding it about the first row. So here I'm writing 2 upon x minus 2, then it will be this row eliminated, this column eliminated, 1 into 1 will be 1. Then I'm writing y upon 2 minus y, this row is eliminated, this column is eliminated, then we are left with 1. And the last one is z upon 2 minus z.
So here this row is eliminated, column is eliminated, it will be 0 minus 1. So here we have minus 1 and this is equals to 0. So what we need to do here, if I try to create the expression which is given in the question, what is happening here? 2 upon x minus 2. So I need to take negative common so that it converts to 2 minus x. Okay. Here it is already negative times 2 minus y upon 2 minus y. Okay. And here it is negative times z upon 2 minus z. So they have asked us the sum of these expression. So let us take this negative from the first one and take negative common from each and every term and send it to 0. So we'll observe that the sum of 2 upon 2 minus x plus y upon 2 minus y plus z upon 2 minus z is giving us the result as 0. That is option B will be the final answer. I hope you understood the concept that we have used a normal determinant expansion to get the result in this question. So let us start with the next question over here. Box contain 2 1 rupee coin. That means there are 2 coins of 1 rupee. Then 2 5 rupee coin, 2 coins of 5 rupees. Then 2 10 rupees coin, 2 coins of 10 rupees. And the last one is 2 20 rupees coin, then the 2 coin of 20 rupees. 2 coins are drawn at random simultaneously. The probability their sum is 20 rupees or more. So basically if I want to get the probability of their sum, probability sum greater than or equals to 20. So I can also think about the complement case. That means I can also write it as 1 minus probability sum less than 20. So we'll be subtracting all those cases where we are obtaining the sum less than 20 and we'll be subtracting it from 1. Okay. So 1 minus probability sum less than 20 will be equals to the probability sum greater than 20. Now sum less than 20 will be equals to what? So here what we can observe, 1 minus probability sum less than 20. So here I need to select all those terms from the 6 terms if I am selecting any 2 coins. Okay. So in this particular case, if I select any 2 coins from 6 coins over here and I subtract one case 2C2, that is if I select these 2 coins, then only I'll be able to get sum 20. Else every other case, if I select 2 coins from this set of 6 coins, I'll always get the sum less than 20. So that is it. That is the reason I'm writing 6C2 minus 2C2 and this whole is divided by total 8C2 cases. If I try to simplify it, so what will be the result? Here I'll observe that 1 minus 6C2 is 6 into 5, 30. Then it is 15 minus 1. And here 8C2 will give me the result 28. So that is why we will be able to get 1 minus half and 1 minus half will give you a value that is 1 upon 2. And 1 upon 2 is given to us in the option B. That is why option B will be the final answer. In this way we will be able to solve this question. So I hope you are able to understand. Now we are moving ahead to the next question. Here is a xi comma 1 upon xi where the value of I is between 1, 2, 3, 4 are the 4 distinct points on the circle. These are the 4 points which are given on the circle. Okay. Then the product of x1 to x4 will be equals to what? So how will I be able to deal with this problem? Basically what I'll do, let the equation of circle, let the equation of circle that I need to assume over here be x square, then it is y square, then it is 2gx, then 2fy, then plus c is equals to 0. So let us assume this is the equation of circle. Now we need to put a coordinate in this form, x comma 1 upon x. I will be substituting the coordinate in this form, x comma 1 upon x. So here we have x square, then we have 1 upon x square, then we have 2gx, then we have 2fy, okay, and then plus c is equals to 0. Now this has to be taken the LCM as x square, and as soon as I take this LCM as x square, I'll be able to get x raised to the power 4. Then I get 1, then I get 2gx square, then I get 2fx. Alright, and here we are having cx square is equals to 0. So I am able to generate a biquadratic expression. And in this biquadratic expression, I am just collecting all the terms. It is x raised to the power 4. Alright. Then we have 2gx square and then we have, 2gx, it should be 2gx cube, not x square. It is 2gx cube. Okay. So x raised to the power 4 plus 2gx cube. Now I am taking the term which is having x square, that is cx square. Now I want the term that has x in it.
So it will be 2fx and then 1. So 2fx and then 1. So this is a biquadratic expression which will have 4 roots into it. One is x1, other is x2, other is x3, and the last one is x4. I want the product of the roots for this polynomial. If I want the product of the roots for this polynomial, this will be taken with plus, this will be taken with minus, this will be taken with plus, this will be taken with minus, and this will be taken with plus. So the product of the roots here will be 1 upon 1, and 1 upon 1 is 1 itself, and in the option D we are observing that one answer is given to us. That is why the product of x1 to x4 will be equals to 1. I hope you understood the concept that I have used for attempting this question. So now we are moving ahead to the next one. In this question there is a definite integral given to us, and this definite integral is, I suppose it is d theta whole divided by 1 plus tan theta, and I want to integrate this definite integral from theta 1 to theta 2. Moreover, it is also given in the question that this is a value of theta 1 and this is a value of theta 2. If I try to add theta 1 and theta 2, what I will observe? So theta 1 plus theta 2, the values which are given in the question is pi upon 2008, and the remaining is 1003 pi upon 2008. So what we can observe here, this is equals to pi over 2. Theta 1 plus theta 2 is pi over 2. Now here what we can do, we will be just applying the property that is a king property. So king property suggests us that instead of theta, we will be replacing it by theta 1 plus theta 2 minus theta, and theta 1 plus theta 2 is pi by 2. So pi by 2 minus theta, this will be coming inside the function 10. So here we will observe that we are having 1 plus 10 pi by 2 minus theta. Here we have theta 1, here we have theta 2. Now tan 90 minus theta will be written as cot theta. So this is d theta whole divided by 1 plus cot theta, and the limits are between theta 1 to theta 2. Let us try to convert it in the form of 10. So here we have integration between theta 1 to theta 2. Then we have d theta whole divided by 1 plus 1 upon tan theta, because cot theta has been converted to 1 upon tan theta. Let us take the LCM over here. It will be theta 1 to theta 2. Then we have tan theta. Then we have d theta whole divided by 1 plus tan theta. I hope this is also clear to you. So this is the value of first equation I. This gives us a value of the second equation I. Now let us try to add first and second equation. If I try to add the first and second equation, then I plus I will be converted to 2i, and in the numerator we will observe that we will have the addition of 1 plus 10, and 1 plus 10 was already there in the denominator. So 1 plus 10 is getting cancelled with this 1 plus 10. So we are left with 1. Integration of 1 will be theta, and the limits are defined between theta 1 to theta 2. So finally I will have theta 2 minus theta 1. This is the value for 2i. Now theta 2 minus theta 1, what does it suggest? जैसे हम theta 2 और theta 1 को subtract करेंगे तो 1003 में से 1 जाएगा तो 1002 upon 2008 आएगा. 1002 upon 2008. This is the value for 2i. अब जैसे ही हम इधर से i की वैल्यू निकालेंगे, so this will give me a value 501 pi whole divided by 2008. अब इन्होंने ना हमें ये जो आंसर आया है उसको 501 पाई अपॉन के से कंपेयर करने को कहा है, एंड वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ के. सो 501 पाई अपॉन के को जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू 2008 आ जाएगी, एंड 2008 इज गिवन टू अस इन द ऑप्शन डी. दैट इज व्हाई ऑप्शन डी विल बी द फाइनल आंसर. I hope you understood this concept that we have used in attempting this question. So that is why we are moving ahead to the next one. Here we have another question. There is a line Lx plus My plus n is equals to 0. This line cuts the ellipse in the points whose eccentric angle differ by pi by 2. So there is an ellipse given to us. Okay? और इस ellipse में एक line हमें काटते हुए जा रही है. For example यहाँ पे मैं पैरामीटर थीटा अज्यूम कर लेता हूँ. तो ये हो जाएगा a cos थीटा और यहाँ पे आ जाएगा b sin थीटा. अब इन्होंने बोला कि अगला जो इसेंट्रिक एंगल है उसमें डिफरेंस पाई बाई 2 का है. सो दिस विल बी कन्वर्टेड टू a cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास b sin पाई बाई 2 प्लस थीटा. आई होप ये भी क्लियर हो गया आपको. अब यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा माइनस a sin थीटा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा b सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, तो ये b cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा विद अ पॉजिटिव साइन. आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया. नेक्स्ट हमें क्या करना होगा यहाँ पे कि हमें 2 पॉइंट्स तो पता लग गए हैं,
और देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और हमें लाइन दी हुई है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल्स टू 0। तो हम इस लाइन के अंदर है ना ये वाले पॉइंट्स डालते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल्स टू 0 में। तो हमें पता लगेगा कि एल एक्स प्लस एम वाई की जो वैल्यू है वो माइनस एन है, और यहाँ से दो इक्वेशंस बनेंगी। सबसे पहले हम डालते हैं ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो जैसे आपने यहाँ पे ए कॉस थीटा रखा और फिर आपने बी साइन थीटा रखा, ध्यान से देखो, दिस इज एम टाइम्स बी साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है माइनस एन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमने क्या करा, ये वाला पॉइंट रखा माइनस ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा और फिर आ जाएगा हमारे पास बी कॉस थीटा। ऑल राइट, तो ये हमें मिल गया है माइनस एन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे और हम सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। ऐसा करने से होगा क्या, देखो ये एल स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है और ये एल स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है। जब ऐड हो जाएंगे ना तो एल स्क्वायर ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। ये एम स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ये एम स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। ऐड हो जाएंगे ये, तो यहाँ पे हमारे पास एम स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा और साइन ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। इधर हमें है ना 2LAMB साइन इंटू कॉस प्लस में मिलेगा, इधर 2LAMB साइन इंटू कॉस माइनस में मिलेगा। तो वो दोनों तो कट जाएंगे, क्योंकि जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। तो इस वाले का 2ab और इस वाले का 2ab आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर आप जब देखेंगे राइट हैंड साइड में तो आपके पास एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा। सो इधर हमें वैल्यू मिली है एल स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। अब एल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर ही हमसे पूछा गया है, and this is equals to 2n square. 2n square is given to us in the option A. That is why option A will be the final answer for this question. I hope you understood the concept that we have used for doing this question. Now we are moving ahead to the next one. There is a expansion 1 plus x raised to the power n. इन्होंने बोला इसके पास 3 consecutive terms हैं और इनके जो coefficients हैं उनका रेशियो चल रहा है 1:2:3 and they can be written in this form. इस फॉर्म में उनको लिखा जा सकता है। The sum of all possible values of n plus k will be equals to what? तो देखो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, तो बेसिकली है ना इन रेशियोज को तो ऑलरेडी इन्होंने डिफाइन करके दे दिया, NCK+1 NCK+2 और इनका रेशियो भी लिखा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए NCK+1 अपॉन NCK करते हो अगर आप, तो आपको रेशियो दिया हुआ है 2/1। इनफैक्ट अगर आप NCK+2 होल डिवाइडेड बाय NCK+1 करते हो तो आपको रेशियो मिल जाएगा 3/2। इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, एक फॉर्मूला है NCR अपॉन NCR-1 इज इक्वल्स टू n-r+1 अपॉन r। ओके, सो n-r+1 अपॉन r ये कॉन्सेप्ट है जो आपको लगाना है NCR अपॉन NCR-1 में। अगर आप इसको r कंसीडर कर लेते हैं तो ये r-1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा n-r+1 अपॉन r और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 2। इन द सेम वे यहां पे जब आप इसको r कंसीडर कर लेंगे तो ये r-1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n-r+1 होल डिवाइडेड बाय r एंड दिस इज इक्वल्स टू 3/2। सो बेसिकली दो वेरिएबल्स हैं n और k और दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। वी नीड टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस एंड गेट द वैल्यू ऑफ n एंड k। जैसे हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो n और k की हमें इजीली वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ये है n-k और यहाँ पे है 2k+2, तो इसको हमने लिखा n इज इक्वल्स टू 3k+2। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे हमने देखा n-k और फिर है हमारे पास में -2 + 1 तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 2, हेयर वी हैव 3 टाइम्स k+2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2n - 2k -2 और यहाँ पे आ जाएगा 3k+2 3k+6। ऑल राइट, अब है ना सारे k को एक तरफ आप ले आएं या फिर 2n को ऐसा लिख दे, 2n इज इक्वल्स टू 5k एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास +8। तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल के और ये वाले n की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, k और n दोनों आ जाएंगे। k और n आ जाएंगे तो आपके पास n + k का सम आ जाएगा और n + k का सम आएगा ऑप्शन ए, दैट इज 18। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू यूज फॉर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर 6 ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 6 आर 8 एंड 4। ये तो आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, तो मतलब ओरिजिनली xi था और xi कन्वर्ट हो गया है 3xi में, तो अब मीन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो जो मीन जो होगा दैट विल बी ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट विल बिकम 3x बार। नेक्स्ट फाइंड द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी 3 टाइम्स हो जाएगा पुराने वाले से। देखो आपको है ना वेरिएंस का फॉर्मूला पता होगा, और उसमें लिखते हैं हम xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक है, समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n। अब xi भी 3 टाइम्स हो गया, x बार भी 3 टाइम्स हो गया, अगर आप 3 कॉमन लोगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 9 टाइम्स बन जाएगा। वेरिएंस 9 टाइम्स है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन तो 3 टाइम्स होगा। इस वजह से ना जो भी पुराना आपका मीन आया उसका 3 गुना कर दो, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया उसका 3 गुना कर दो, तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन 3 गुना करने के बाद में 12 मिल जाएगा। I hope you understood the method that I used for attempting this question. Now we are moving ahead to the next one. The negation of the statement, एक statement दी हुई है is what? इनमें से क्या आंसर होना चाहिए? अब हमें है ना सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर P implies Q करके कोई भी statement दी हुई है that is logically equivalent to negation P or Q. तो यहाँ पे भी हमें P implies Q and R दिया हुआ है. So this can be written as, this particular statement can be written as negation P or Q and R. अब हमें इस स्टेटमेंट का भी क्या निकालना है, नगेशन निकालना है। ऐसा लिखा हुआ है कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसका भी आप नगेशन निकाल के दो। तो एक काम करते हैं, पहले से इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं या उससे पहले हम डी मॉर्गन लॉ लगाते हैं। जैसे ही हम इसमें डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे तो नगेशन ऑफ नगेशन पी तो पी बन जाएगा, और यहाँ पे और का तो बन जाएगा एंड, और यहाँ पे आ जाएगा नगेशन ऑफ क्यू एंड आर। अब नगेशन ऑफ क्यू एंड आर को भी सिंप्लीफाई करते हैं डी मॉर्गन लॉ से, तो पी एंड यहाँ पे नगेशन क्यू और नगेशन आर। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया कि हमने ये कैसे लिखा। देन हमें क्या करना होगा, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने से पहले एक बार ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं, कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है? यस, हमें डी ऑप्शन में यही दिया हुआ है जो हमारा रिजल्ट आया है। सो इस वजह से डी ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। I hope you understood the concept that I used for attempting this question. So that is why we are moving ahead to the next one. In the next question, we have a question of integration where we need to integrate e raised to the power sin x multiplied by x cos cube x minus sin x whole divided by cos square x, and this integration needs to be done with respect to x. तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे cos स्क्वायर को इसके साथ अलग डिवाइड करो तो आपके पास आ जाएगा e raised to the power sin x, फिर आ जाएगा x टाइम्स cos x, ठीक है, ये अलग किया मैंने। फिर e रेज टू द पावर sin x को इसके साथ करो इनटू sin x, तो यहाँ पे आ जाएगा e रेज टू द पावर sin x, फिर आ जाएगा इनटू sin x, एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर। तो हमने क्या करा कि जैसे ही cos स्क्वायर से sin x को डिवाइड करेंगे ना, तो sin x अपॉन cos x तो एक तो 10x बन जाएगा और एक sec x बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक तो 10x और एक आ जाएगा हमारे पास sec x, और ये पूरा हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इस वाले को अलग कर देते हैं, इस वाले को अलग कर देते हैं। अब आपको है ना एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या कि मान लीजिए बच्चों कि अगर आपने e रेज टू द पावर sin x cos x को इंटीग्रेट करना है तो आप कैसे करेंगे। देखो ये अलग से इंटीग्रेशन करके बता रहा हूँ कि e रेज टू द पावर sin x इंटू cos x को अलग से इंटीग्रेट करना है। तो आप कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, sin x को t अज्यूम करेंगे, और sin x को t अज्यूम करके तो यहाँ पे cos x dx आ जाएगा, उसको आप लिख देंगे dt। तो ये बन जाएगा क्वेश्चन आपका e रेज टू द पावर t dt, और ये e रेज टू द पावर t इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका। सो यहाँ पे भी हम यही लॉजिक लगाने वाले हैं। हमारे पास दो फंक्शंस मिल गए, पहला फंक्शन तो है x और दूसरा फंक्शन है e रेज टू द पावर sin x इंटू cos x, और है फिर साथ में dx। ओके, इसका इंटीग्रेशन करना है। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकेंड फंक्शन। इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाऊंगा। इन द सेम वे यहाँ पे मेरे पास है e रेज टू द पावर sin x, और साथ में ये मल्टीप्लाई में चल रहा है 10x इंटू sec x के साथ, तो यहाँ पे 10x है, यहाँ पे sec x है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारा सेकेंड फंक्शन। आई होप ये भी आपको क्लियर है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, और वो फॉर्मूला क्या होगा, fx मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन। जैसे ही हम दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे e रेज टू द पावर sin x इंटू cos x का, तो हमारे को रिजल्ट जो मिलेगा वो e रेज टू द पावर sin x का मिलेगा। सो fx इंटीग्रेशन ऑफ gx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज e रेज टू द पावर sin x। ओके, फिर यहाँ पे भी आप सेम का सेम लॉजिक लगाएंगे
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सेकंड इंटीग्रल के लिए। तो आप लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 10x sec x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास e रेज टू द पावर समथिंग का e रेज टू द पावर समथिंग, फिर sin x का cos x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास sec x। अब sec इंटू कॉस तो हमारे पास 1 होता है, तो ओनली e रेज टू द पावर sin x ही बच जाएगा। e रेज टू द पावर sin x इधर भी है, e रेज टू द पावर sin x उधर भी है, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। अल्टीमेटली हमारे पास है x टाइम्स e की पावर sin x और यहाँ पे है e की पावर x इंटू sec x। ठीक है, अब e की पावर x नहीं है, ये e की पावर sin x है एक्चुअली, e की पावर में है sin x। तो e की पावर में अगर आप sin x कॉमन ले लें तो x माइनस sec x आ जाएगा। अब ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है? हाँ, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ये साइन है e की पावर sin x इंटू एक्स माइनस e की पावर sin x इंटू sec x। यस, ए ऑप्शन आपको सेम ऐसा ही दिया हुआ है जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, हेंस ए ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। तो देखो फाइनल आंसर आ क्या रहा है, बिल्कुल साफ साफ लिख के देता हूं आपको, e रेज टू द पावर sin x इंटू एक्स माइनस e रेज टू द पावर sin x इंटू sec x and followed by plus c because it was a indefinite integration. I hope you understood the way that we have used for attempting this question. That is why we are moving ahead. We have to write the answer of sin inverse 1 upon root 5 plus cot inverse 3। और इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? अब आप है ना sin inverse एक बार 1 by root 5 को है ना cot inverse में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। सो सपोज ये तो हमारे लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो बेस आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4, 4 का रूट करेंगे तो 2। तो अगर मैं इसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो मैं लिखूंगा इसे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आ गया 2 अपॉन 1 दैट इज 2। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना वो कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3 में कन्वर्ट हो गया। मोरओवर आई ऑल्सो विश के मैं इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये टेन इनवर्स हाफ हो गया और एक बन गया है टेन इनवर्स 1 अपॉन 3। तो ये हो गया हमारा हाफ और ये हो गया है हमारा 1 अपॉन 3। अब टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं, टेन इनवर्स x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। चलो ये लगा दिया हमने। अब x प्लस वाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 5 अपॉन 6 एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 5 अपॉन 6। चलो ये हमारे पास आ गया है टेन इनवर्स के अंदर। अब ये 5 अपॉन 6 डिवाइड कर दिया हमने, तो टेन इनवर्स के अंदर 1 आ गया और ये टेन इनवर्स के अंदर 1 जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। अब ये पाई बाय 4 जो दिया हुआ है दिस इज गिवन टू अस इन द ऑप्शन बी, हेंस ऑप्शन बी विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन। Here we have alpha beta are the real roots of the given equation। एक इक्वेशन हमें दी हुई है x square, then we have k minus 2 times x and then we have k square plus 3k and then we have plus 5 is equals to 0। ये हमें इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, एक तो है रूट अल्फा और दूसरा रूट है बीटा। और हमें क्या करना है यहाँ पे, रियल रूट्स इन्होंने दिए हुए हैं, तो रियल रूट्स दिए हुए हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इसका पॉजिटिव होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर लिखा आपने माइनस 4 इंटू ए इंटू सी दैट इज के स्क्वायर प्लस 3k एंड देन इट इज प्लस 5। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यह आ जाएगा के स्क्वायर, यह आ जाएगा 4 देन वी गेट माइनस 4k, फिर यहाँ पे माइनस का 4k स्क्वायर आ गया, माइनस का 12k आ गया एंड देन वी गेट माइनस 20। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो के स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 3k स्क्वायर, माइनस 4k माइनस 12k इट विल बी माइनस 16k और यहाँ पे 4 माइनस 20 दिस इज माइनस 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इनमें से अगर आप चाहें तो नेगेटिव कॉमन लेके इस साइन ऑफ इनइक्वलिटी को बदल सकते हैं। सो दिस इज 3k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 16 एंड लेस देन और इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी नीड टू डू हेयर, वी हैव 48 विद अस। अगर 48 है तो हम इसे 12 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, तो एक तो बन गया 3k स्क्वायर, एक 12k और एक 4k और यहाँ पे हमारे पास आ गया है 16 लेस देन और इक्वल टू 0। 3k अगर हम कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 4 आ जाएगा और यहाँ पे अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 4 आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0। तो अगर हम k प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं सो वी आर लेफ्ट विद 3k प्लस 4 और लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये हमें दो इंटरवल्स मिल गए हैं, एक तो माइनस का 4 अपॉन 3 और एक माइनस का 4। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है क्या
k इज इक्वल्स टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, सो दिस रीजन विल बी सेटिस्फाइड. सो द वैल्यू ऑफ k लाइज बिटवीन -4 टू -4/3. तो यहां से हमें ये तो पता लग गया कि -4 से लेकर -4/3 तक k लाई कर रहा है. ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो गया. नेक्स्ट इन्होंने हमसे पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो जैसे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं, सो दैट विल गिव मी अ वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए लिखेंगे तो आ जाएगा k-2, सो इट विल बी k-2 होल स्क्वायर. एंड देन आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज c/a, सो इट विल बी k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 5. तो यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 5. अब ये जो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया है ना, इसका इस इंटरवल के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो k स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4k, फिर माइनस का 2k स्क्वायर, माइनस का 6k एंड माइनस का 10 आ जाएगा. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का k स्क्वायर, देन आ जाएगा माइनस का 10k एंड देन आ जाएगा 4 माइनस 10 विच इज -6. तो ये हमें वैल्यू मिल रही है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की. अब ये जो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है. तो अगर इसी इंटरवल पे जाना है ना, तो आपको एब्सोल्यूट मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा ये निकालना होगा. और अगर हम इस इंटरवल में बात करें तो नेचर ऑफ फंक्शन देख लो आप. यहाँ पे हमें माइनस का 2k माइनस का 10 मिल रहा है. ठीक है, माइनस का 2k माइनस का 10 मतलब k की वैल्यू -5. तो k की वैल्यू -5 के अबाउट ही ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेंज होगा. डिफरेंशिएशन करके पता चला मुझे. तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में तो ये या तो टोटली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा. तो आप एक काम करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ना k की वैल्यू -4 पे निकाल लो, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू k की वैल्यू 4/3, ये -4/3 आई थिंक या k की वैल्यू -4/3 पे भी निकाल लो. इन दोनों पे निकालोगे, एक पे मैक्सिमम आएगा, एक पे मिनिमम आएगा. तो जब हम आंसर को देखेंगे ना, तो एक तो हमें वैल्यू मिल रही होगी 18 और एक मिल रही होगी 50/9. ठीक है, तो जैसे -4 डाल के बताता हूँ आपको. तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 16, देन आ जाएगा प्लस का 40 और आ जाएगा माइनस का 6. तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, सो आई विल बी एबल टू गेट द रिजल्ट 18. तो ये तो हो गया मेरे लिए मैक्स वैल्यू 18. ऐसे ही जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, सो इट विल बी 50/9. तो ये मेरे लिए हो जाएगा मिन वैल्यू. तो मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू ये है, तो हमें दिया हुआ है ऑप्शन ए. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. I hope you understood the way to attempt this question. This question was from the chapter quadratic equation. Now we are moving ahead to the next one. The sum of the coefficient of all the terms in this expansion, there is an expansion given to us, 2x minus y plus z raised to the power 20. Okay, and in this expansion what I'll observe, I'll apply the multinomial theorem, 20 factorial over p factorial, q factorial, r factorial, 2x raised to the power p minus y raised to the power q and then z raised to the power r. Okay, this is the expression given to us. Moreover, we also know that the sum of p, q, r are 20. This is total 20 because the net power on this expansion is 20. In which y do not appear. यहाँ पे लिखा हुआ है y do not appear, that means q is equals to 0. If q is equals to 0, then p plus r is equals to 20. Alright, ये भी हमें पता लग गया कि p plus r 20 है. Now इसमें ऐसा भी दिया हुआ है, while x appears in even powers and z appears in odd powers. तो x तो है even powers में, मतलब p को तो even होना पड़ेगा, and z appears in odd powers मतलब r को odd होना पड़ेगा. क्या आपको लगता है क्या कि ये पॉसिबल है कि even प्लस odd करेंगे तो 20 आ जाएगा? even प्लस odd कभी 20 मतलब even आ सकता है क्या? नॉट पॉसिबल. दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल कि x के ऊपर तो आ जाए even पावर और z के ऊपर odd पावर आ जाए. Since this condition is not possible, so that is why we will be writing that the sum of the coefficients of all the terms of this type will be equals to 0. I hope you are able to understand, क्योंकि एक भी टर्म ऐसी पॉसिबल नहीं है, तो मतलब जो भी टर्म होगी उसका कोएफिशिएंट हमने 0 ले लिया. So 0 will be the final answer for this question. Moving ahead to the next one, all the 5-digit numbers in which each successive digit exceeds the predecessor are arranged in the increasing order. मतलब जितने भी आप 5 डिजिट के नंबर्स बनाएंगे, उसमें पुरानी वाली डिजिट से जो अगली वाली डिजिट होगी, जो सक्सेसर डिजिट होगी, वो प्रेडेसेसर से एक मतलब बड़ी होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे ये. तो हम क्या करेंगे, हमें 105th नंबर पे जो डिजिट है वो बतानी है, और उसमें कौन सी डिजिट नहीं आ रही है. 105th नंबर पे मतलब रैंक निकाली हमने, और 105th पोजीशन पे जो नंबर आ रहा है 5 डिजिट नंबर, उसमें कौन सी डिजिट प्रेजेंट नहीं है इनमें से.
तो वो कौन सी है वो हमें बताना है। तो हम करते हैं कि सबसे पहले अगर हम 1 से शुरुआत करें, 5 डिजिट नंबर्स की शुरुआत 1 से करें, तो हमारे पास केवल 4 प्लेसेस बची और हमारे पास डिजिट्स कितनी बची हैं? टोटल हमारे पास है ना जो डिजिट्स हैं वो 0 तो लेंगे नहीं हम, क्योंकि 1 के बाद 0 नहीं आएगा, 1 के बाद वही डिजिट्स आएंगी जो 1 से बड़ी हैं। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होने वाले जो डिजिट्स, 1 से स्टार्ट होने वाले 5 डिजिट नंबर जो होंगे वो लिखना स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहली डिजिट 1 है। अब हमारे पास टोटल 9 थी, 9 में से एक यूज कर ली, 8 बची। 8 में से कोई सी भी 4 सेलेक्ट कर लो आप, 8C4। जैसे ही आपने 4 सेलेक्ट किया तो उनको बिठाने का केवल एक ही तरीका होगा कि उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बिठा दो। जैसे आपने ना 4, 5, 6, 8 सेलेक्ट कर लिया, तो 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। इस तरीके से 5 डिजिट नंबर का क्रिएशन हो जाएगा। अब 8C4 की वैल्यू क्या होती है? 8 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। सो दिस इज 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 होल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 24। 8 3 यहाँ पे मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो मुझे पता क्या लग रहा है यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है हमारा, दैट इज 70। तो नंबर ऑफ नंबर्स विच आर स्टार्टिंग विद 1 इज 70। अब मुझे वो नंबर्स के बारे में बात करनी है जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जैसे ही मैं उन नंबर्स के बारे में बात करूंगा जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मेरे पास 4 डिजिट्स बची हैं भरने के लिए। तो अब मेरे पास 2 डिजिट्स, 1 तो मैं यूज नहीं कर सकता और एक मैंने यूज कर ली है, तो अब टोटल 9 में से 2 यूज कर लिया तो 7 बची। 7 में से 4 सेलेक्ट करनी है। 7 में से 4 सेलेक्ट करने का मतलब 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 6 इंटू 7 होल डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल्स टू 35। तो 70 और 35 को जब आप ऐड करोगे ना तो 105 तो खत्म ही हो गए। तो मतलब जो आखिरी नंबर होगा जो 2 से स्टार्ट हो रहा है और वो आखिरी नंबर है, वो कौन सा है? तो आखिरी नंबर जो 2 से स्टार्ट हो रहा है वो ये है कि यहाँ पे 9 रख दो, यहाँ पे 8 रख दो, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6। सो 2, 6, 7, 8, 9 की जो रैंक होगी वो 105 होगी। ठीक है, अब 106 से तो 3 वाले स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये सबसे आखिरी नंबर है जो 2 से शुरुआत होता हुआ बनता है और उसमें जो डिजिट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस्ड है। ठीक है, तो इस नंबर के पास डिजिट कौन सी नहीं है? क्या 1 है? नहीं है। क्या 2 है? हाँ है। 6 है? हाँ है, लेकिन 1 नहीं है। तो इस वजह से ए ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव यूज्ड फॉर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, दैट इज व्हाई वी आर मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0, 10x इंटू रूट एक्स, रूट 10x माइनस साइन एक्स इंटू रूट साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू रूट एक्स। अब आप इसमें एक काम करो, सबसे पहला आपको ये पता है कि मान लीजिए कि अगर आपने साइन एक्स को डिवाइड कर दिया 10x से तो होगा क्या? तो साइन को जब आप 10 से डिवाइड करोगे ना तो ये 10 जो होगा वो तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। अब साइन से साइन कट जाएगा और ओनली कॉस रह जाएगा हमारे पास, ओनली कॉस। तो यहाँ पे हमें ना सबसे पहले ना 10x की पावर में 3/2 को कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हमने 10x की पावर में 3/2 को कॉमन लिया, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे हमारे पास आ गया cos x की पावर में 3/2 एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय, एक तो आ गया एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स की पावर में भी हम 3/2 ले लेते हैं क्योंकि क्यूब है ना ये, तो इसमें एक 3/2 हमने जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह गया, क्योंकि देखो 3 + ½ अवेलेबल था डिनोमिनेटर में, जिसमें 1.5 अगर बाहर निकाल लिया हमने तो 2 रह जाएगा, तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा। अब ये जो 10x/x है ना, ये लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 पे जो वैल्यू शो करते हैं दैट इज 1। तो ये वाली जो लिमिट है वो तो हमें मिल जाएगी 1। अब हमारे पास बचा 1 माइनस cos x और यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर। तो अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बेसिकली? तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको ये प्लान करना होगा 1 माइनस cos x रेज टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है आपके पास में। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले आपको ये पता है कि 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आपने ये लिमिट पढ़ी होगी और लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 है, तो आपने इसको लिख सकते हैं हाफ, ये बन जाएगा हाफ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे भी 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले वो प्रॉपर्टी लगाता हूँ a माइनस बी में ना cos x जो है वो रूट के साथ अवेलेबल है, क्योंकि रूट ऑफ cos x का होल क्यूब है ये। तो a माइनस बी, देन आ जाएगा a स्क्वायर, देन आ जाएगा b स्क्वायर एंड देन आ जाएगा लास्ट में हमारे पास प्लस ab। तो ये हमारे पास बन गया एक्सपांशन और ये पूरा डिवाइड चल रहा है एक्स स्क्वायर से, पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर से डिवाइड चल रहा है। अब मुझे क्या बनाना है, 1 माइनस cos x बनाना है, और 1 माइनस cos x बनाना है तो इस वजह से ना 1 प्लस रूट cos x को मल्टीप्लाई भी कर देना और 1 प्लस रूट cos x से डिवाइड भी कर देना।
अब ऐसा करने से देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को क्लब करके तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। इधर हमारे पास है 1 प्लस कॉस एक्स, फिर है रूट कॉस एक्स। आई होप ये भी क्लियर है। और ये पूरा डिवाइड में चल रहा है एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस रूट कॉस एक्स से। ठीक है, और ये लिमिट ऑफ एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड 0 है। तो देखो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू हाफ। दिस विल गिव मी अ वैल्यू हाफ। और इधर cos 0 डालेंगे, cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, इधर cos 0 डालेंगे 1, cos 0 डालेंगे 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो ये बन जाएगा हमारा हाफ इंटू 3/2 which is equals to 3/4. So 3/4 will be the final answer which is given to us in the option B. Hence option B will be the final answer for this question. मतलब मेजरली हमने 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बनाने के लिए प्रयास किया और उसकी फाइनली वैल्यू हमने हाफ डाल दी, और जो रिमेनिंग था उसमें एक्स की जगह 0 डाल दिया। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। I hope you understood the way that we have used for attempting this question. Now we are moving ahead to the next one. There is a trigonometric equation given to us, और इस इक्वेशन में ये बोला गया है, ये जो cos क्यूब है उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो sin 2x के साथ, और ये जो रिजल्ट आ रहा है वो समेशन आ रहा है m इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और साथ में हमें लिखा हुआ है am इंटू साइन एम एक्स, am इंटू साइन एम एक्स। ठीक है, अब हमें ना, जैसे अगर हम राइट हैंड साइड वाले के बारे में सोचें तो उसमें लिखा हुआ है a1 इंटू साइन एक्स प्लस a2 इंटू साइन 2x प्लस a3 इंटू साइन 3x प्लस a4 इंटू साइन 4x प्लस a5 इंटू साइन 5x अप टिल an इंटू साइन nx। तो ये तो राइट हैंड साइड में है, और लेफ्ट हैंड साइड में ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है ना, इसको sin x, sin 2x, sin 3x इनमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं हम। कैसे कन्वर्ट करें, आपको पता है cos क्यूब का कोई फॉर्मूला, तो यस cos क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा था cos 3x में। सो cos 3x जो होता है ना, वो होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो यहाँ से हम cos क्यूब निकालने की कोशिश करते हैं। देखो cos 3x है, फिर 3 cos x है, और यहाँ पे हमारे पास है 4 cos क्यूब x। तो ये cos क्यूब की वैल्यू निकाल दी है मैंने, दैट इज इक्वल्स टू cos 3x प्लस 3 cos x एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय 4, होल डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो cos क्यूब हमने लिखा है ना यहाँ पे, उसकी वैल्यू डाल देते हैं हम यहाँ पे, cos 3x प्लस 3 cos x। तो ये हमने लिख दिया है cos 3x प्लस 3 cos x होल डिवाइडेड बाय 4। ओके, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय sin 2x। अच्छा, sin 2x को भी है ना आप 2 sin x cos x में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो हम केवल लेफ्ट हैंड साइड की अभी बातें कर रहे हैं आपसे। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड दैट वी आर कंसीडरिंग राइट नाउ। आई होप यहां तक भी आपको क्लैरिटी मिल गई है। चलो ठीक है, अब है ना हमने इसके अंदर हम पता है क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट ये cos 3x इंटू साइन 2x में कन्वर्ट हो गया है, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं ना, सबसे बेस्ट तरीका तो ये रहेगा, इधर इसको अभी sin 2x ही रहने देते हैं। लेट अस अज्यूम दिस टू बी sin 2x ओनली, और इसको है ना अभी मल्टीप्लाई में कर देता हूं मैं यहाँ पे। तो ये cos 3x इंटू साइन 2x मल्टीप्लाइड में 1/4, नेक्स्ट 3/4 साइन 2x इंटू cos x। चलो अब है ना ये 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये बन जाएगा sin a प्लस बी और प्लस बन जाएगा sin a माइनस बी। ठीक है, और साथ में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना होगा। इन द सेम वे यहाँ पे भी 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये बन जाएगा sin a प्लस बी प्लस आ जाएगा sin a माइनस बी। अब है ना थोड़ा सा इनको टर्म्स को सेटल करने की कोशिश करते हैं। देखो sin 5x के साथ है ना जो कोफिशिएंट आ रहा है दैट इज 1/8। सो दिस इज द कोफिशिएंट विद sin 5x। sin x के साथ में है ना 2 कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, एक तो माइनस का 1/8 आ रहा है और एक sin x के साथ में 3/8 आ रहा है। इसको कंबाइन करेंगे तो 1/4 बन जाएगा, और sin 3x के साथ में आ रहा है 3/8। चलो ये तो क्लियर हो गया। मतलब ये जो cos क्यूब इंटू साइन एक्स साइन 2x का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 1/8 sin 5x। तो अगर आपसे पूछे ना ये टर्म्स कितनी जा रही हैं, मतलब 1x से लेकर 5x तक जा रहा है, तो n की वैल्यू तो हो गई 5, n की वैल्यू तो हो गई है 5, क्योंकि आप देखो 1x तो सबसे छोटा है, 1x से शुरुआत करनी थी यहाँ पे,
m इज इक्वल टू 1 तो साइन 1x, और लास्ट हम जा रहे हैं 5x तक, तो n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है 5 तक। बीच में है ना हमें जैसे 2x वाली टर्म है और 4x वाली टर्म है वो तो मिल ही नहीं रही है, तो 2x वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है और 4x वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 0 होगा, मतलब a2 भी 0 होगा और a4 भी 0 होगा। राइट हैंड साइड से कंपेयर कर रहा हूं। अब बात करते हैं a1 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ sin x है, और sin x का कोफिशिएंट जो आ रहा है यहाँ पे दैट इज 1/4। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे a3 जो है दैट इज 3/8, और अगर हम बात करें a5 जो है दैट इज 1/8। अब ऑप्शन देखो, a3 3/8, a2 0, ये दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं। n इज इक्वल टू 5, a1 1/4 ये भी मैच कर रहे हैं, और समेशन m इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक am का सम 3/4, मतलब अगर आप सारे a1 से लेकर a5 तक का सम कर देंगे तो आपको 3/4 मिलेगा। यस, मतलब ABC सारे के सारे सही हैं, इस वजह से D ऑप्शन will be the final answer for this question. I hope you understood the method that we have used for attempting this question. Hence, we are moving ahead to the next one. Here in this question, ABC are the three non-coplanar unit vectors such that A cross B cross C, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया हुआ है। इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। आप लिखेंगे यहाँ पे B वेक्टर, और इधर अंदर आ जाएगा आपके पास में A डॉट C, ये B वेक्टर का कोफिशिएंट है, माइनस फिर आप लिखेंगे C वेक्टर, और फिर आपके पास आ जाएगा A डॉट B, और यहाँ पे है हमारे पास 1/√2 B वेक्टर प्लस C वेक्टर। चलो अब है ना कंपेयर कर लेते हैं हम कि जो A डॉट C है ना वो आ गया है 1/√2, और सिमिलरली ये जो माइनस टाइम्स A डॉट B है ना वो हमारे पास आ गया है 1/√2, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ B वेक्टर एंड C वेक्टर। इन्होंने हमसे एंगल पूछा है A और B में, तो हम केवल इसी पे स्ट्राइक करेंगे। ये मॉडुलस A मॉडुलस B इंटू कॉस थीटा बन जाएगा, और इज इक्वल्स टू माइनस का 1/√2 है। मॉडुलस A मॉडुलस B दोनों 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर्स है, तो कॉस थीटा 1/√2 आ जाएगा। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा पाई माइनस π/4 विच इज इक्वल्स टू 3π/4। Is there any option which has 3π/4? Yes, A option. So that is why A option will be the final answer for this question. I hope you understood the concept that we have used for attempting this question. That is why we are moving ahead to the next one. Let there be a function which is defined from real to real. This fx is equals to 2x plus sin x. ये हमें फंक्शन दिया हुआ है where x belongs to R. अब ये इनमें से कौन सा फंक्शन है 1 ऑन टू 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 ये सब चीज़ें चेक करनी है हमें। हाउ विल आई बी एबल टू चेक इट? जैसे ही मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो मुझे पता लगा कि डिफरेंशिएशन आ रहा है 2 प्लस साइन एक्स। अब मुझे पता है कि जो साइन एक्स की वैल्यू है ना वो -1 से +1 के बीच में लाई करती है, तो इसका मतलब अगर आप 2 प्लस साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे सो दैट विल लाई बिटवीन 1 to 3, और 1 to 3 मतलब ऑल पॉजिटिव। 1 से 3 में जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। सो एफ डैश की वैल्यू जो आ रही है दैट इज पॉजिटिव, एंड एफ डैश पॉजिटिव आ रहा है तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा सो एफ विल बी 1 1, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन में हमेशा क्या मिलता है 1 1। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये 1 1 है। अब बात करते हैं ऑन टू। ये रियल से रियल डिफाइंड है, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और इसका जो कोडोमेन है वो -∞ से +∞, दैट इज रेंज। अगर मैं x की वैल्यू -∞ ले जाता हूँ तो fx की वैल्यू भी है ना हमारी -∞ जा रही है, और अगर मैं x की वैल्यू +∞ ले जाता हूँ तो हमारी fx की वैल्यू भी +∞ जा रही है। इसका मतलब जो इसकी रेंज है ना और जो कोडोमेन है वो बिल्कुल सेम दी है। रेंज एंड कोडोमेन आर इक्वल, दैट इज वाई फंक्शन fx इज ऑन टू। तो fx 1 1 भी है और fx ऑन टू भी है, दैट इज वाई A ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन। I hope you understood the method that we have used for attempting this question. So that is why we are moving ahead to the next one. एक हमें सीरीज दी हुई है 1 into 2 into 2, 3 into 2 square, 4 into 2 cube, 100 into 2 raised to the power 99, और इसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है हमें। तो हम इस पूरी सीक्वेंस को S मान लेंगे। देखो 1, फिर है हमारे पास ट्वाइस ऑफ 2, फिर है थ्राइस ऑफ 2 स्क्वायर, एक एक पावर बढ़ती जा रही है, और 100 टाइम्स 2 raised to the power 99। यहाँ पे है ना ये AGP चल रही है, द सीक्वेंस इज नोन एज AGP, क्योंकि इसमें अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज दोनों चल रही है 1 2 3, और ये 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2 अप टिल 2 raised to the power 99। इस पूरी सीक्वेंस को एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो और एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखो। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर 2 into 2 स्क्वायर, फिर 3 into 2 क्यूब, और लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे
100 इंटू 2 रेज टू द पावर 100। आई होप ये भी आपको क्लियर है कि जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब है ना हम इन दोनों सीक्वेंसेस को करते हैं सबट्रैक्ट। अब 2s s माइनस 2s करेंगे तो माइनस s आ जाएगा, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे ना आप, तो 2 माइनस 1 2 आ जाएगा। फिर आपके पास 3, यहाँ पे 2 स्क्वायर है 2 स्क्वायर है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2 क्यूब, ठीक है। फिर लास्ट वाला जो है ना ये 100 है, यहाँ पे 99 बैठा होगा, 2 रेज टू द पावर 99। तो ये वाली जो सीक्वेंस है ना, ये वाला जो टर्म है वो 99 इंटू 2 रेज टू द पावर 99 और लास्ट में माइनस 100 टाइम्स 2 रेज टू द पावर 100। अब है ना पूरी सीक्वेंस का अगर आपको s लिखना लाना तो ये बन जाएगा 100 इंटू 2 रेज टू द पावर 100। ये तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, जो नेगेटिव थी ना इसको पॉजिटिव बना दिया, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और नेगेटिव टाइम्स ये एक सीक्वेंस बनती हुई दिख रही है जो कि एक जीपी है। ओके, सो दिस इज अ सीक्वेंस 100 माइनस 1, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, ये 2 रेज टू द पावर 99 तक है। तो ये एक सीक्वेंस बनती दिख रही है हमें जो एक जीपी है। और इसमें कितनी टर्म्स हैं? 100 टर्म्स है। तो हम क्या लगाएंगे इसमें? a r रेज टू द पावर 100 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। एंड दिस इज 100 टाइम्स 2 रेज टू द पावर 100 एंड देन वी हैव माइनस इज इक्वल्स टू s। तो यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिला है दैट इज 100 टाइम्स 2 रेज टू द पावर 100 एंड देन माइनस 2 रेज टू द पावर 100, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस। तो ये हमें मिल जाएगा 99 टाइम्स 2 रेज टू द पावर 100 एंड देन ये वी हैव प्लस 1। 99 टाइम्स 2 रेज टू द पावर 100 प्लस 1 is given to us in the option C. That is why option C will be the final answer for this sequence. I hope you understood the method that we have used for attempting this question. That is why we are moving ahead to the next one. यहाँ पे हमें दिया हुआ है k times एक matrix is an orthogonal matrix. Then the value of k will be equals to what? अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें a इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? i के बराबर मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें k दिया हुआ है और फिर k स्क्वायर टाइम्स हमें दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना होगा और इज इक्वल्स टू में हमें लिखना होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन टू यू। सो बेसिकली देखो ये जो मैट्रिक्स है -1 फिर 2 फिर 2 फिर 2 -1 और फिर 2 और फिर 2 2 -1। अब जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज लेंगे सो ये बन जाएगा पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम एंड तीसरी रो तीसरा कॉलम। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो गेट्स मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम, सो -1 इंटू -1 प्लस 1 देन 4 एंड देन वी हैव +4, सो इट विल बी कन्वर्टेड टू 9। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रही है ना यहाँ से, तो वो हमें क्या दिख रही है? 9 के बराबर आ रही है यहाँ पे। तो ये देखो 9 फिर 0 फिर 0, फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0 9 0, फिर आ जाएगा 0 0 9 और इधर हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इधर है हमारे पास बाहर लिखा हुआ k स्क्वायर। तो जब आप 9 के स्क्वायर को 1 से कंपेयर करेंगे तो k स्क्वायर की वैल्यू 1/9 आ जाएगी और k की वैल्यू बन जाएगी +-1/3। +-1/3 हमें दिया हुआ है ऑप्शन बी में, so that is why option B will be the final answer for this question. I hope you understood the method that we have used for attempting this question. That is why we are moving ahead to the next one. The first derivative of this function with respect to x at x is equals to 1 will be equals to what? इनमें से क्या आंसर होना चाहिए? तो जैसे हम आपको डिफ्रेंशिएट करना सिखाते हैं, cos इनवर्स के अंदर है साइन, साइन के अंदर है अंडर रूट में 1 प्लस x/2। तो क्या इस cos इनवर्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन, फिर है रूट के अंदर 1 प्लस x/2 एंड प्लस है x की पावर x। अब हमें क्या करना होगा? साइन इनवर्स है साइन, यहाँ पे π/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x/2 प्लस x रेज टू द पावर x। ये मान लेते हैं y बन गया। अब हमें dy/dx लिखना है, तो π/2 का डिफरेंशिएशन 0, रूट ओवर समथिंग का 1/2 रूट समथिंग। आई होप ये भी क्लियर है। इनटू अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हाफ आगे आ जाएगा और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा, प्लस x रेज टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर x। अब इन्होंने बोला dy/dx के अंदर आप 1 डालें, सो जैसे ही आप dy/dx के अंदर 1 डालेंगे ना, यू विल बी एबल टू गेट द फाइनल आंसर एंड दैट फाइनल आंसर विल गिव अस द वैल्यू 3/4।
3/4 is given to us in the A option. That is why A option will be the final answer for this question. I hope you understood the method that we have used for this question. Now we are moving ahead to the next one. The maximum value of this sine x plus pi by 6 plus cos x plus pi by 6 in the given interval 0 to 90 is attained at which particular theta? So how to do this question basically? तो देखो इसमें ना इस फंक्शन की आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और साइन प्लस कॉस के फॉर्मेट में दिया हुआ है ये। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि हमारा ये जो फंक्शन है वो f है और f के अंदर हमारे पास है साइन x प्लस पाई बाय 6 और है हमारे पास में cos x प्लस पाई बाय 6। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैंने सोचा कि मैं इसमें डिफरेंशिएशन करता हूँ। सो आई गॉट cos x प्लस पाई बाय 6, देन आई हैव माइनस साइन x प्लस पाई बाय 6। तो ये भी हमारे पास आ गया। अब इस डिफरेंशिएशन को हम जीरो करते हैं। सो यहाँ से हमारे पास cos x प्लस पाई बाय 6 और इज इक्वल्स टू साइन x प्लस पाई बाय 6 मिल गया। चलो अब हमने क्या करा, cos से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ 10x प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस x प्लस पाई बाय 6 कैन बी इक्वेटेड विद पाई बाय 4। यहाँ से पाई बाय 4 से इक्वेट कर सकते हैं। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एज पाई बाय 12, पाई बाय 12 मिल गई है वैल्यू। ओके, नाउ वी नीड टू चेक वेदर दिस इज मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन डाल देंगे और डबल डिफरेंशिएशन करके हम उसके अंदर पाई बाय 12 डालेंगे। जैसे ही हमने डबल डिफरेंशिएशन करा और पाई बाय 12 डाला, वी गॉट द पॉजिटिव रिजल्ट। सिंस डबल डेरिवेटिव एट पाई बाय 12 इज पॉजिटिव, सो मैक्सिमा एग्जिस्ट। अच्छा नेगेटिव है ना मिनिमम, ये नेगेटिव आएगा, करके देख लेना पक्को। दिस इज नेगेटिव, सो मैक्सिमा एग्जिस्ट एट पाई बाय 12। सो मैक्सिमा एग्जिस्ट एट पाई बाय 12। तो ये तो आपका आ गया है मैक्सिमा। चलो इसको हटा रहा हूं एक बार। सो मैक्सिमा एग्जिस्ट एट पाई बाय 12। सो एफ डबल डैश पाई बाय 12 इज लेस देन 0। ठीक है, तो मैक्सिमा एग्जिस्ट एट पाई बाय 12, सो दैट इज व्हाई ए ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर for this particular question. I hope you understood the method that we have used for attempting this question. So thank you so much everyone. We have done round about 25 questions which are really very important for the JEE Mains. Stay connected and do regular watch these series of questions. Thank you once again.